Assalamualaikum students. Hope you all are good. Students, open your social studies book. Today we are going to start our first history chapter, that is early Pakistan. In this chapter, we will learn about the early civilization of Pakistan. We will discuss about the history of the Indus region. We will learn about the Asian people of Pakistan and discuss about the two ancient cities of Pakistan, that is Mohenjo-daro and Harappa. And we will discuss that why invaders left their places. So, in the first paragraph, we will discuss about the invaders, that why they invaded in subcontinent through Khyber Pass and Bolan Pass. What was the reason behind their invaded? कि वो सबकॉन्टिनेंट में क्यों आए, उसकी क्या वजह थी. In the second paragraph, we will discuss about the two ancient cities, Mohenjo-daro and Harappa. In the next page, we will discuss about the features of the houses in which they were lived, and in the last page we will discuss about the possibilities why they left their places. Okay, and at the end of the lecture I will share a link with you from which you can get more information about Mohenjo-daro and Harappa and the early civilization of Pakistan. So students, you can see the two pictures on page number 76. First picture is the dancing girl picture. This statue, this is actually the statue that was discovered on from Mohenjo-daro in 1922, and this is the aerial view of the city Mohenjo-daro. Means this picture is taken from the aircraft or airplane. Now we are going to start the studies. 4,000 of years, different races have powered through the Khyber and Bolan passes, especially from Central Asia into the northern part of the subcontinent. मतलब कि काफ़ी साल पहले डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट कस्टम के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग खैबर और बोलान पासिस के थ्रू सेंट्रल एशिया में आए, जो इस टाइम पाकिस्तान है, विद गुड फार्म लैंड, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इन पास्ट टाइम्स मैनी फॉरेस्ट्स. It must have seemed a wonderful place after the dry plains of their homelands. This is the reason that why they came in the subcontinent. उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी ज़मीन नज़र आई जहाँ पे वो खेती बाड़ी कर सकते थे, अपने जानवरों के लिए खाना इन्हें नज़र आया, और काफ़ी मिकदार में पानी नज़र आया, क्योंकि वो डेजर्ट ड्राई प्लेन से आए थे, इसलिए ये जगह उन्हें बहुत अच्छी लगी. As well as plenty of food, there was gold and silver too. वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा खाने को खाना मिला और गोल्ड और सिल्वर भी उन्हें मिला, जिसकी वजह से वो नकल मकानी करके सब कॉन्टिनेंट में आए. Some invaders came to raid for treasure and to take prisoner for slaves. Others came to conquer and stay. कुछ लोग यहाँ पर सोने और चांदी पर डाका डालने आए, उन्हें लूटने आए, जबकि कुछ यहाँ पर लड़े जो यहाँ के रहने वाले लोगों से, और इस जगह को जीतकर यहीं पे स्टे कर लिया, यहाँ पे बस गए. Many of these invaders, conquerors or raiders, settled down especially in the northwest where Pakistan is now. यहाँ पर वो लोग जो नकल मकानी करके आए थे, जो अब जगह पाकिस्तान है, यहाँ पर उन्होंने लड़ाई की या यहाँ पर लूटा लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, और यहाँ पर बस गए. एंड हैव एडिड अ वाइड रेंज ऑफ रेसेस, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स टू आवर कंट्री. एंड दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न ऑफ डिफरेंट कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस इन द पाकिस्तान, कि यहाँ पर
because the people or invaders came from different races or different culture or different religions. So this is the main reason of different languages and customs over here, over Pakistan. Okay, so now we are going to start about the ancient cities of Pakistan and the civilization of that ancient city. Mohenjo-daro and the Indus Valley Civilization. About 4500 years ago, there was a mysterious and very civilized state in the Indus Valley. It stretched over almost all of what is now Pakistan and eastwards to Delhi. जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने उनकी आबादी ज़्यादा होना शुरू हुई, तो जिस तरफ वो आबादी बढ़ा रहे थे, मतलब आबादी बढ़ती जा रही थी, वो अब पाकिस्तान है. और ईस्टवर्ड टू दिल्ली, यहाँ से जो ईस्टवर्ड की तरफ उन्होंने आबादी अपनी बढ़ाई, यानी कि दिल्ली की तरफ. The remains of two great cities, Mohenjo-daro and Harappa, as well as hundreds of villages, have been discovered. मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलावा यहाँ पर 100 से ज़्यादा विलेजेस और भी डिस्कवर्ड हुए. बिफोर स्टार्टिंग about Mohenjo-daro and Harappa, I am going to tell you something about Mohenjo-daro, that when it was discovered. Mohenjo-daro was actually discovered by the British archaeologist in 1922, and before 1 year हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड. मतलब मोहनजोदाड़ो से 1 साल पहले 1921 में हड़प्पा डिस्कवर्ड हुआ और 1922 में मोहनजोदाड़ो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया. आर्कियोलॉजिस्ट इज एक्चुअली द पर्सन हु डिस्कवर्ड द ओल्ड प्लेसेस और हिस्टोरिकल प्लेसेस. ओके, सो द पीपल पॉपुलेटिंग दीज विलेजेस वर कॉल्ड ड्रेविडियंस. वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो ड्रेविडियंस कहलाते थे. एंड सीम टू हैव बीन मोर सिविलाइज्ड देन एनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड एट द टाइम. और वो अपने जो कस्टम्स थे, उनकी जो तहजीब थी, वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते थे. उन सब लोगों से ज़्यादा वो फॉलो करते थे जो दुनिया में रहते थे. मोहनजोदाड़ो वॉज अबाउट 7 किलोमीटर्स ऑल राउंड विद इट्स मेन स्ट्रीट्स 9 मीटर्स वाइड. टोटल जो था मोहनजोदाड़ो 7 किलोमीटर्स था टोटल, और जो उसकी मेन स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, वो 9 मीटर चौड़ी थी. बिटवीन दीज रैन स्मॉलर स्ट्रीट्स ऑफन विद जी बेंड्स इन देम. ये जो गलियां थी वो जेड शेप की थी. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई दीज रोड्स हैड शार्प कॉर्नर्स इन देम. इन्होंने पूछा कि आपके ख्याल में क्या रीज़न हो सकती थी कि उन्होंने जेड गलियां बनाई थी, जेड शेप की. सो आई थिंक द रीज़न ऑफ द जेड शेप स्ट्रीट वाज दैट वाज द डेजर्ट प्लेस. वह दरिया के करीब था और वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था. तो हवा के प्रेशर को कम करने के लिए, टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द विंड फ्लो, दे मेड जेड शेप streets. Okay, today we learn about the early civilization of Pakistan and the two ancient cities of Pakistan, that was Mohenjo-daro and the Harappa. And the people who lived in the Mohenjo-daro and Harappa was called Dravidians. Okay, and we learned about the Z-shaped streets. के उन्होंने ये क्यों बनाई थी? Because to decrease the wind flow at that time. Okay, so these are the two pictures we discussed today. First picture is about the dancing statue. It discovered from Mohenjo-daro in 1922, and this is the aerial view of Mohenjo-daro. Okay, hope you all understand this. Tomorrow I will tell you about the houses and the features of Dravidians. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum students, hope you all are good. Okay students, we started page number 76, first chapter of history, that was early Pakistan. Remember,
In the first paragraph, we were discuss about the invaders, that why they invaded and the reason behind their invade, कि वो क्यों यहाँ पर आए थे. Then we discuss about the Mohenjo-daro and the people who lived in the Mohenjo-daro. And today we will discuss about the houses of Dravidians and about their great bath and their language, and the last, that why they left their places. Okay, so before starting our new topic, we discuss about our previous topic, that invaders came from Khyber Pass and Bolan Pass with different culture and races. So Pakistan are a mixed bowl of people with a variety of languages, religion and culture. The reason of their invade was the plenty of food for themselves and their animals, the plenty of water, silver and gold. So they came for this reason in the subcontinent, because their homeland was plain dry. So यहाँ पर आना उन्हें, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा. Then we talked about Mohenjo-daro and the Indus Valley civilization, that Mohenjo-daro was discovered in 1922 by British archaeologist. We will talk about the picture of the statue. This was the dancing statue that was discovered from Mohenjo-daro. The people who lived in the Mohenjo-daro was known as Dravidians, and they made Z-shaped streets to decrease the wind flow at that time. Now we are going to start our new topic. The houses were made of mud bricks and often had rooms in the upper level, which is very unusual indeed in such early buildings. Richer houses had bathrooms with baths made of clay and lined with tar to make them waterproof. They also had simple toilets. These emptied into covered drains which ran down the center of the main streets. Now, in this paragraph, we will talk about their houses. At that time, the houses were made of mud bricks. किससे बने हुए थे इनके हाउसेस? मड ब्रिक से. या कच्ची मिट्टी, आप लोग गांव में गए होंगे तो कच्ची मिट्टी के घर आपने देखे होंगे. नीचे वो लोग ईंटें लगाते थे, उसके ऊपर कच्ची मिट्टी का लेप करते थे, और रहने के लिए जो रूम्स थे वो ऊपर वाली मंजिल पर, अपर लेवल पर वो रहने के लिए रूम बनाते थे. और जो अमीर उस टाइम के लोग थे वो लोग नहाने के लिए बाथरूम अलग बनाते थे जो क्ले से बने होते थे, ताकि वो पानी ना टपके या वाटरप्रूफ वो बनाते थे. और सिंपल टॉयलेट्स वो अलग से बनाते थे. और उस टाइम पे जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो उन्होंने कवर्ड रखा हुआ था, मतलब कि ऊपर उसके छत बनाई हुई थी ताकि स्मेल ना आए या जो भी था उनका. विच रेन डाउन द सेंटर ऑफ द मेन स्ट्रीट, जो मेन स्ट्रीट के सेंटर में जाता था उनका ड्रेनेज सिस्टम जो था. In the center of the city was an artificial hill made of mud bricks. Here were the most important buildings, the main one being a huge bath with steps leading to it. शहर के दरमियान में उन्होंने आर्टिफिशियल हिल जो बनाई हुई थी वो भी मड ब्रिक से बनाई थी. ईंटों के ऊपर उन्होंने कच्ची मिट्टी का लेप किया हुआ था और हिल की तरह एक छोटी सी चोटी की तरह बनाई हुई थी. और उस हिल पे उन लोगों ने अपनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और टेम्पल बनाया हुआ था. इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मतलब कि जो गवर्नमेंट उस टाइम पे यूज़ करती थी, दैट कैन बी अ पार्लियामेंट और अ गवर्नमेंट हाउस. Okay, or you can see the picture over here. That is the picture of Great Bath, which was also on the artificial hill. That bath was before their temple, and they used to bath before going to temple. और वो टेम्पल के जाने के बाद जितनी भी अपनी मजहबी रसूमात करते थे उनसे पहले ये इस टेम्पल में जाकर गुस्ल करते थे और फिर वो टेम्पल में जाकर अपनी मजहबी रसूमात करते थे. यू कैन सी
in the green border, that is the great bath. This is the great bath at Mohenjo-daro as it is today. ये अभी तक इसी तरह से ही है वहाँ पर. It is 12 meters long and 7 meters wide. ये जो लंबाई में 12 मीटर्स है और चौड़ाई में ये 7 मीटर्स है. It may have been used for religious purposes. At the back are small rooms. इसके ग्रेट बाथ के बैक पे पीछे छोटे छोटे रूम्स भी थे जो अभी भी हैं. ईच विद अ पूल ऑफ इट्स ओन. ये तो बहुत बड़ा पूल है ना. उस रूम के हर रूम के साथ साथ छोटे छोटे पूल भी थे. These may have been for the priest. जो उस टाइम के पुजारी यूज़ करते थे. हो सकता है उस टाइम के पुजारी वो यूज़ करते थे. ओके, सो इट मे have been part of a temple and people had to bath in it before going in for religious ceremonies. यानी कि ये टेम्पल का पार्ट था उस टाइम पे और लोग मंदिर में टेम्पल में जाने से पहले अपनी मजहबी रसूमात करने से पहले वो यहाँ पर गुस्ल करते थे. There are the remains of a huge hall with many pillars and archaeologists think this may have been some kind of parliament or government building. यहाँ पर जो वहाँ पर जो हमें मिला है, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है और जो अब तक है, वो एक बड़ा सा हॉल, इसके अलावा ग्रेट बाथ और टेम्पल के अलावा बड़ा सा हॉल मिला है जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं. और आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये हो सकता है उस टाइम पे पार्लियामेंट या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो. जैसे आप अभी भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखें तो एक बड़ा सा हॉल है और उसके साइडों पर उसके शुरू में काफ़ी सारे पिलर्स भी आपको नज़र आते हैं. ये इसी तरह की बनाई हुई बिल्डिंग है. नो साइन ऑफ अ पैलेस हैज़ एवर बीन डिस्कवर्ड एंड वी बिलीव द होल ऑफ द इंडस एम्पायर वाज रूल्ड बाय प्रीस्ट्स. मतलब कि यहाँ वहाँ पर कोई भी पैलेस का निशान नहीं मिला, ना ही उसके कोई बकायाजात मिले हैं पैलेस के, क्योंकि उनका ख्याल है और वो इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि उस टाइम की जो इंडस एम्पायर थी, बादशाह थी, उस टाइम पे जो बादशाह थी वो पुजारियों की थी, प्रीस्ट्स की थी. लोग उनका कहना मानते थे. उस टाइम पे कोई भी बादशाह नहीं था क्योंकि कोई भी पैलेस उन्हें नहीं मिला. टेम्पल मिला और वहाँ पे छोटे छोटे ये ग्रेट बाथ और उसके साथ छोटे छोटे कमरे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे वहाँ पे पुजारी रहते थे और यूज़ करते थे. जैसे क्रिश्चियंस के प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं, उस तरह से उनके उस टाइम पे प्रीस्ट थे. अदर सिटीज़ वर बिल्ट ऑन सिमिलर लाइंस टू मोहनजोदाड़ो बट वर स्मॉलर. और भी इस तरह की मोहनजोदाड़ो की तरह के छोटे छोटे शहर मिले हैं, लेकिन वो मोहनजोदाड़ो से काफ़ी छोटे हैं. द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सीम टू हैव बीन पीसफुल फार्मर्स. दे ग्रीव बार्ली, वीट, सीसम, लेंटिल्स एंड पीस. ये समझा जाता है कि उस टाइम पे जो इंडस वैली के लोगों की जो रहने वाले लोग थे वो बहुत ही पीसफुल माने जाते थे, जो लड़ाई नहीं करते थे आपस में, और पेशे के लिहाज से वो फार्मर्स माने जाते क्योंकि और वहाँ पर वो क्या उगाते थे, बार्ली, वीट, सीसम, लेंटिल्स एंड पीस. वहाँ पर इसके ही बकायजात मिले हैं कि हो सकता है यहाँ पर वो लोग फार्मर्स थे और ये चीज़ें उगाते थे. हाउ डू वी नो दिस सिंस द पीपल लेफ्ट नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ एट द टाइम. हमें किस तरह से पता चलता है कि कोई भी रिटन रिकॉर्ड उन्हें हमें मतलब उन्होंने कभी भी लिखा ही नहीं है ज़िंदगी में कुछ भी, तो आपके ख्याल में कैसे पता चल सकता है? वी थिंक दैट एट दैट टाइम पीपल हैज़ नो रिटन रिकॉर्ड्स बिकॉज हमें इस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला, ना ही उनकी कोई लिखी हुई किताब मिली है जिससे पता चले कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे. ये सब चीज़ें सिर्फ उन्होंने एज्यूम की हैं. जो रिमेनिंग चीज़ें उन्हें नज़र आई हैं, जैसे एक टेम्पल नज़र आया है, ग्रेट बाथ नज़र आया जिसकी उन्होंने पिक्चर इधर शेयर की है, स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का. तो इस चीज़ों से उन्होंने ये चीज़ें सारी एज्यूम की हैं. कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन बुक नहीं मिली. Tiny fragments of cloth have been found showing that the people knew how to grow cotton and to weave cloth. उन्हें कपड़े के छोटे छोटे ज़रात भी मिले हैं उनकी जगहों से, जिससे उन्हें पता चलता है कि
वहाँ के रहने वाले लोग जानते थे कि किस तरह से कॉटन को उगाया जाता है और उससे किस तरह से कपड़ा बनाया जाता है. दे हैड ऑलमोस्ट नो मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड अ लिटिल कॉपर एंड ब्रॉन्ज, एंड द फ्यू मेटल टूल्स दैट हैव बीन फाउंड आर नॉट वेरी स्किलफुली मेड. और जो चीज़ें मिली हैं इससे पता चलता है कि कोई भी मेटल उस टाइम पे वो उन लोगों को नहीं पता था किसी भी मेटल का सिवाय गोल्ड के या कॉपर के या ब्रॉन्ज के, क्योंकि जो उनके बनाए गए हथियार भी मिले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं बनाए गए और इन्हीं चीज़ों के सिर्फ बनाए गए हैं. वुड एंड स्टोन वर यूज फॉर मोस्ट थिंग्स, और ज़्यादातर जो उनकी बनी हुई चीज़ें मिली हैं वो लकड़ी और स्टोन की बनी हुई मिली हैं. They do not seem to have invented money, and we think that the people were paid by the government in grain and other food. और ये माना जाता है कि उनको उस टाइम पे पैसे की दरियाफ्त नहीं हुई थी और वो बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे. मतलब कि जो एक फार्मर उगाता है दूसरा फार्मर को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपस में चीज़ों के लेन देन से एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते थे. गवर्नमेंट भी उनसे चीज़ें ख़रीद कर चीज़ें ही उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें देती थी. दे हैड अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ राइटिंग बट नो वन हैज़ येट बीन एबल टू रीड इट एंड द वर्ड्स यूजली अपीयर्ड ऑन क्ले सील. वो बहुत ही सिंपल किस्म की राइटिंग जो भी मिली है उनकी मिली है, लेकिन अभी तक उसका मतलब नहीं समझ आया, ना ही कोई उसे पढ़ सका है. और राइटिंग जो मिली है वो क्ले पर लिखी हुई मिली है. क्ले पर उस टाइम पे उन्होंने वो चीज़ बनाई और लिखी है, लेकिन आज तक कोई भी उसका मतलब नहीं समझ सका. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ एलिफेंट, यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ क्ले स्टोन. मतलब कि क्ले पे उन्होंने ये पिक्चर बनाई है एलिफेंट की और उसके ऊपर देयर इज़ अ राइटिंग जो अभी तक समझ नहीं आई है आर्कियोलॉजिस्ट को कि इसका क्या मतलब है. सील विद मिस्ट्री राइटिंग. मिस्ट्री राइटिंग मीन्स they couldn't find at that time that what is the meaning of that writing. It is a mystery that what is the meaning behind this. You can see two blue bullet box. This is just for your information. In the first bullet box you can see the more universal term CE common era is now used in place of AD, and BCE before common era is used in place of BC. You can आप लोगों ने ये देखा होगा कि AD जो है कई जगह पे यूज़ किया हुआ है और कई जगह पे BC, लेकिन अब AD की जगह CE कॉमन एरा यूज़ होना है और BC की जगह BCE बिफोर कॉमन एरा. AD कहाँ पर यूज़ होता था आप लोगों को पता होगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद का ज़माना जो है उसकी जब हम कोई बात करते हैं तो हम AD लिखते थे, ठीक है. लेकिन अब AD की जगह क्या लिखना है, CE कॉमन एरा. और जो कबले मसीह यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले के ज़माने की जब हम बात करते थे तो हम BC बिफोर क्राइस्ट लिखते थे, लेकिन अब BC की जगह क्या यूज़ करना है, बिफोर कॉमन एरा. ओके. सो इन द सेकेंड बुलेट बॉक्स यू कैन सी द मिस्टीरियस सील ऑफ मोहनजोदाड़ो. द क्ले सील may have borne the names of the merchants whose bundles of goods were fastened with their mark. कि मिस्टीरियस ये अभी तक मोहनजोदाड़ो की जो राइटिंग है वो मिस्टीरियस ही है. ये माना जाता है कि जो क्ले सील, यू कैन सी द क्ले सील इन दिस पिक्चर. ओके, दिस इज़ द क्ले सील. ये क्ले की बनी हुई चीज़ वो होती थी उस टाइम पे. क्ले सूखती थी तो क्ले के ऊपर वो जो भी चीज़ बनाते थे वो बनाते थे और उसके ऊपर जो मर्चेंट था, ताजर, जिसकी वो चीज़ कोई बंदा जिससे लेता था एक दूसरे के साथ जो बार्टर सिस्टम वो करते थे, वो जिस ताजर की वो चीज़ होती थी वो क्ले के ऊपर अपने नाम के साथ वो चीज़ देता था, ठीक है. ओके, सो टुडे वी वर डिस्कस अबाउट पेज नंबर 77. वी वर डिस्कस अबाउट देयर हाउसेस, artificial hill and great bath, their the hall which can be assumed, which is assumed about that this is
their parliament, this was their parliament house, and about their profession. और क्या हमें मिला था, क्लोथ्स मिले थे, और क्या क्या वो उगाते थे इसका हमने पढ़ा है, बार्ले, वीट, सेसम, लेंटिल्स एंड पीस। और किस किस्म के उन्हें मेटल्स का पता था, गोल्ड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज का, क्योंकि उनके जो हथियार थे वो इन्हीं चीज़ों के बने होते थे, और ज़्यादातर चीज़ें जो बनी हुई मिली हैं वो वुड एंड स्टोन की थी। टुमारो वी विल रीड पेज नंबर 78. Okay, hope you all understand page number 77. Okay, Allah Hafiz. Assalamualaikum students, hope you all are good. Okay students, open page number 78. Okay, so we started chapter number 16, early Pakistan. Yesterday we were talk about the houses of the people of Mohenjo-daro, means Dravidians, that किस किस्म के वो घर में रहते थे, और उनके ग्रेट बाथ के बारे में हमने बात की थी, और उनके जो हॉल मिला है बड़ा उसके बारे में बात की थी, और हमने बात की थी कि वो एज अ प्रोफेशन फार्मर थे, और उनकी कुछ भी जो भी बनाई हुई चीज़ें मिली हैं वो वुड और स्टोन की बनी हुई मिली हैं. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ दैट व्हाई दे लेफ्ट मोहनजोदाड़ो और देयर लिविंग प्लेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द टू पिक्चर्स इन द front of your page number 78. This is the picture of ox cart, right? First picture is the old ox cart that were used the Dravidians, and this is modern ox cart. Okay, so can you see any difference between two cart? Can you see? There is no difference in these two carts except the two hole. You can see the modern ox cart, right? So there is no difference except two holes. You can see the green belt. Not everything disappeared from the Indus Valley civilization. This little model ox cart was found among the ruins of Mohenjo-daro. This toy cart also found in Mohenjo-daro. Perhaps it was a toy or an offering to the gods. On the right is an ox cart from the Indus Valley today. Okay, and you can see the picture. This is the picture of the statue of priest king. Okay, it is assumed, the archaeologists assume that this statue may be used by the priest of the people or the people of Mohenjo-daro for their religious purpose. मतलब कि वो अपनी इबादत के लिए हो सकता है कि ये स्टैचू यूज़ करते हो. ये स्टैचू उनके किंग प्रीस्ट का हो सकता है. दिस स्टैचू वॉज फाउंड एट Mohenjo-daro. इट मे बी दैट ऑफ अ प्रीस्ट. द पैटर्न ऑन हिज रोब रिप्रेजेंट द स्काई. यू कैन सी लेफ्ट शोल्डर is covered with cloth decorated with trefoil, fillet or ribbon headband with circular inlay ornament or on the forehead, and similar but smaller ornament on the right upper arm. आप देख रहे हैं ना, ऊपर इसने हेयर बैंड सा लगाया हुआ है प्रीस्ट ने, और दरमियान में उसके एक ऑर्नामेंट यानी कि कोई मोती सा है, और इसी तरह का ही उसने अपने राइट आर्म के ऊपर वाले बाजू पे भी पहना हुआ है, राइट. और इसके जो क्लॉथ शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पर चोगा सा जो उसने वो डाला हुआ है, उस पर जो है बादल या फूल के ये निशानात बने हुए हैं, राइट. सो इट इज़ एज्यूम दैट इट कैन बी द स्टैचू ऑफ देयर प्रीस्ट किंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज. अबाउट 2000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, some disaster seems to have struck Mohenjo-daro. दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है कि कोई डिज़ास्टर
यानी कि कुछ ऐसा हुआ, अर्थक्वेक आया हो या फ्लड आया हो जिसकी वजह से मोहनजोदाड़ो स्ट्रक हो गया, बंद हो गया हो और वहाँ के लोगों ने उसे छोड़ दिया हो या वो उसी तरह से मर गए हों और बिल्डिंग्स उस डिज़ास्टर की वजह से तबाह हो गई हों। When the houses fell down, they were rebuilt in much rougher way. जब हाउसेस उसके उधर के घर गिरे थे तो उसके बाद जब दोबारा बने थे तो वो उस तरीके से नहीं बने, काफ़ी रफ तरीके से बने हैं। एज इफ पीपल डिड नॉट केयर एनीमोर, और वहाँ के रहने वाले लोगों ने भी उसकी ज़्यादा केयर नहीं की। न्यू वॉल्स डिवाइडेड रूम्स सो दैट मोर फैमिलीज कुड क्राउड इनटू ईच हाउस। उस टाइम पे जब घर बने थे तो जो कमरे उन्होंने ऊपर अपर लेवल पे बनाए थे वो काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे, लेकिन बाद में लोगों ने उनके दरमियान में दीवारें खड़ी कर दी और उन्हें 1 से 2 या 3 कमरों में डिवाइड कर दिया ताकि 1 से ज़्यादा फैमिलीज उधर रह सकें। द स्ट्रीट्स वर नॉट रिपेयर्ड, जो उस टाइम की स्ट्रीट थी वो रिपेयर नहीं की गई। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज ब्लॉक्ड अप, उनका बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, आपने पहले पढ़ा था, कवर्ड था, लेकिन केयर ना करने की वजह से उनका ड्रेनेज सिस्टम भी ब्लॉक हो गया। वी डू नॉट नो वाई ऑल ऑफ दिस हैपेंड, हमें सही तरह से नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। परहैप्स देयर वॉज अ क्लाइमेट चेंज दैट मेड इट मोर डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लाइमेट चेंज आया हो, मौसमी तब्दीली आई हो जिसकी वजह से वो क्रॉप्स ना उगा सकते हों, बाद में उन्हें मुश्किल पेश आती हो। और परहैप्स द रिवर चेंज इट्स कोर्स, और हो सकता है कि जो उस टाइम पे दरिया वहाँ पे रिवर बहता था उसने अपना जगह चेंज कर ली हो। टुडे द रुइंस आर 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द रिवर, अब जो है वो ये जो तबाहशुदा जगह है वो रिवर से 5 किलोमीटर्स दूर है। परहैप्स ऑल द ट्रीज वर कट डाउन फॉर बर्निंग, और जो उस टाइम पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा दरख्त थे वो अब कट चुके हैं जलाने के लिए, जलाने के काम लाने के लिए। एंड बिल्डिंग, उधर की बिल्डिंग भी अब तबाह हो चुकी है। एंड द सॉइल वॉज वॉश्ड अवे, और जो उस टाइम पे मट्टी थी, जरखेज़ मट्टी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। इन सम ऑफ द अदर सिटीज़ ऑफ द इंडस एम्पायर, इंडस एम्पायर की जो बाकी शहर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द पीपल जस्ट लेफ्ट एंड द बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि वहाँ के जो इर्द गिर्द के शहर थे उनके रहने वाले लोगों ने भी वो वैसे ही वो शहर छोड़ दिए और वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे ना रहने की वजह से तबाह हो गई, उनके ना रहने की वजह से तबाह हो गई। ओके, सो this whole chapter was about the early civilization of Indus Valley or the early Pakistan. So you know where the Mohenjo-daro is now? Mohenjo-daro is near the Larkana. Today Larkana is in the Sindh province, सिंध में लाड़काना पाया जाता है, उसके बिल्कुल करीब मोहनजोदाड़ो है। ओके, सो नाउ दिस इज क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। I will share the pictures of the answers of all the questions, and I will share a link from which you can get more information about the early Pakistan. Okay, hope you all understand the chapter of early Pakistan. Okay, Allah Hafiz.